ये जो होता है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। Does anyone know any other coordinate system? किसी को पता है कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम हो? ये वाला होता है जो x, y में रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक पॉइंट अगर लें तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y. This is the x-axis, this is the negative x-axis, this is the y-axis, this is the negative y-axis. Okay, किसी भी पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. Do you know of any other coordinate system? There's another coordinate system called polar coordinates होता है. वो आप या तो फर्दर मैथ में पढ़ते हैं या आप आगे जाके एक टॉपिक में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी P3 के अंदर. Or when you're giving your SAT 2 you will come across other system called polar coordinate system. ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे स्टिक करेंगे and we'll do our calculations based on that. सही? Okay, this is called the first quadrant. This is called the second quadrant. This is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. Okay, that's how quadrants are numbered. For future references, हम इसी तरह follow कर रहे होंगे. So, the first formula is for the length of for the distance between 2 points. सही है. A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. तो डिस्टेंस AB का जो फॉर्मूला होगा वही होगा. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है या डिस्टेंस बिटवीन A and B का फॉर्मूला होगा y2 minus y1 whole square x2 minus x1 whole square. आप x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं and you square them and take a root. You get to find the length of the straight line joining the points this and this. तो आप कहेंगे कि AB का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 7 minus 3 whole square 4 minus 1 whole square. आपने ये मुझे दिखा दिया, इसके बाद आपको मुझे कोई कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा, 5 आ जाएगा. That's all you need to do. Okay. Any questions at this point? ये दूसरा क्वेश्चन है. ये कहते हैं the points P, Q and R have coordinates this, this and this respectively. If P, Q and Q R are of equal length, find the possible values of A. तो हमने कहा कि P, Q and Q R are of equal length. तो मैं डायरेक्टली इससे स्टार्ट कर सकता हूँ. P, Q equals to Q R. यहाँ पे मैं P, Q का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं Q R का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँगा. P, Q का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो आएगा 7 minus 11 square 5 minus 1 square. और QR का कैसे आएगा? हम लिखेंगे A minus 7 square plus 9 minus 5 square. Right? This becomes root of 32. If you do this on a calculator, it's going to become root of 32. अंदर वाली कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर लें. 4 square है. अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे क्या करना चाहिए? सर रूट से रूट को कैंसिल. Okay, Saad is telling us कि roots को cancel. अभी किसी ने बोला, पता नहीं, I don't know who was speaking, but you're asking me to cancel out the roots. और अली नासिर और वलीद खान हमें कह रहे हैं कि आप expand कर दें. सही है, मैं expand भी कर सकता हूँ, but what I want to show you is कि मैं expand किए बगैर भी कर सकता हूँ. I'll cancel out the roots in a bit. मैं दिखाता हूँ roots भी cancel हो रहे हैं. Generally roots को हम direct cancel नहीं करते. Roots को remove करने का तरीका क्या होता है? What's the logical way of doing it? By squaring both sides. सही है, you square both sides to get rid of a root. तो ये मैंने root जो है वो खत्म कर दिया. तो मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास बच गया 32 equals to A minus 7 square plus 16. Now you see I have still not expanded. मैं उसको उसी तरह रख रहा हूँ. उसकी वजह क्या है?
की वजह ये है कि अब मैं जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। मैं कहूंगा कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर, so what I can then do is I can put a root on both sides. So I get two answers, a minus 7 equals to 4 and a minus 7 equals to minus 4. So a आ गया 11 and a आ गया 3. is midpoint है ना, तो पहले मैं midpoint का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सही, midpoint of the line joining 2 points A and B. सही है, तो midpoint का फॉर्मूला होता है x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So you add the x coordinates, you divide by 2, you add the y coordinates, you again divide by 2. So get to find the coordinates of the midpoint of the line joining a 1,8 and b 7,4. तो अगर midpoint निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे midpoint 1 plus 7 divided by 2 and 8 plus 4 divided by 2. Okay, I get 4, 6. उसको कैपिटल M लिखते हैं और लिखना चाहो तो नीचे A भी लिखते हैं। अब वो कहता है कि L is the midpoint of the line joining P and Q. Find the values of A and B. दो अननोन्स हैं, देखते हैं कि भाई एक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व होता है। हमने कहा कि midpoint of PQ जब हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा A plus 3 divided by 2 and B minus 5 divided by 2 या minus 5 plus B divided by 2. दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा? दूसरी साइड पे आ जाएगा -1 comma -2. So I get a plus 3 over 2 and minus 5 plus b over 2. Yeah, I forgot. Okay, since I have two unknowns, I need to have two equations. So this equation should this x coordinate should equal this x coordinate, and this y coordinate should equal this y coordinate. तो मेरे पास दो equations ड्रॉप हो जाएंगी, -1 equals to a plus 3 divided by 2 and -2 equals to -5 plus b divided by 2. यहाँ पे आ जाएगा a equals to -5 if I solve this, and यहाँ पे आ जाएगा 1 equals to b. Is another example on midpoint. ये कहता है p, q, r and s are the vertices of the parallelogram PQRS. Calculate the coordinates of s. सर हम डायगोनल्स लेंगे ना पी आर और क्यू एस, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी तो उनका मिड पॉइंट। सही है, ये सही बात है कि भाई हम जो कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को सेम बनाएंगे। अली नासिर, यू आर राइट अबाउट पैरेलल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर मिड पॉइंट का ही सिर्फ आइडिया यूज करना है तो हम क्या सिंपल सी बात करेंगे कि जो डायगोनल्स होती हैं इन अ पैरेललोग्राम, दे ऑलवेज मीट एट मिड पॉइंट। और अभी मैं थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टीज दूसरे शेप्स की भी बताता हूँ। सही है, लेकिन हमें ये पता है कि ये डायगोनल्स जब बनेंगी तो these diagonals must meet at the midpoint। सही है, अब ये इम्पोर्टेंट होता है कि भाई किसकी डायगोनल किसका मिड पॉइंट सेम होगा, पी क्यू और आर एस या किसका। तो मेरे पास आंसर आया हुआ है पी आर एंड क्यू एस। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप किसी भी शेप को लेबल करते हैं तो आपने कंसिस्टेंटली लेबल करना होता है। आप इस तरह पी क्यू आर एस एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, या आप चाहते तो यूं भी लिख सकते हैं पी क्यू आर एस। या तो आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखना है या क्लॉकवाइज लिखना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बी के फॉर्म में चले जाएं। आपने कहा पी क्यू आर और एस, यहाँ पे यूं नहीं लिख सकते। सही है, तो मेक श्योर दैट यू नो दैट। तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा मिड पॉइंट ऑफ पी आर is equals to midpoint of QS. What is the midpoint of PR? Let's calculate it on the left hand side. -1 plus 7 divided by 2 and 5 plus 5 divided by 2. और QS क्या है? Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, S के नहीं पता, तो मैं कहूँगा 8 plus x divided by 2 और 10 plus y divided by 2। सही है, ये बन जाएगा
6/2 ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। माइनस, और ये हो जाएगा 10/2, तो y equals to 0. Does that make sense to everybody? Okay, because the diagonals are the same midpoints, therefore this question can be solved using midpoints only. Can someone come up with another idea to solve this question? Let's say मुझे midpoint click नहीं करता. What else would you do? मुझे कहा था कि भाई opposite sides are डिस्टेंस equal. फार्मूला यूज कर सकते हैं सर, बिल्कुल पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस सेम होगा। पहले तुम कहोगे PS और QR का डिस्टेंस सेम होगा, फिर तुम कहोगे कि SR और PQ का डिस्टेंस सेम होगा। सिर्फ डिस्टेंस के फॉर्मूला में देखो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी, एट सम पॉइंट जाके सॉल्व हो जाएंगी, बट तुम सोचो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो होते हैं वो x स्क्वायर्स भी होते हैं, y स्क्वायर्स भी होते हैं, x भी होते हैं और y भी होते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बन जाएगी। लेकिन सर मेथड तो है ना सॉल्व करने का, मेथड पूछा आपने। हाँ बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ एक और मेथड है आसान वाला, तुम सोचो। सर ग्रेडियंट से नहीं निकाल सकते? ग्रेडियंट से क्या करोगे बताओ? सर SR और PQ का ग्रेडियंट तो सेम होगा। सही है, फिर से लेकिन दो अननोन आ जाएंगे तो तुम्हें दो सेट्स ऑफ इक्वेशंस चाहिए होंगे, एक नहीं। जी इब्राहिम पाइथागोरस में क्या करोगे? पाइथागोरस तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है बेटा। देखिए व्हाट आई एम अपीलिंग टू इज द फैक्ट कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि सर छोटा सा डायग्राम बना के देख लें शायद सॉल्व हो जाए। ये देखो करके दिखाता हूँ मैं। -1 और 5 मैं आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ रफ स्केच, नॉट प्रिसाइज, बट जस्ट टू शो यू कि इट्स अ स्केच so that you can see the coordinates. फिर यहाँ कर दिया मैंने, सही है। और क्यूब इज 8 and 10। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल ऐसे सॉल्व करने से तो हमें मना करते थे टीचर्स एट मैथ में। एग्जैक्ट ड्राइंग से मना करते हैं। ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या मेथड लगा रहा हूँ। मैं समझ गया सर आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या मना कर रहे करते थे हैं? टीचर जैसे। हाँ हाँ क्या कर रहे हैं आप बताएं, मैं क्या कर रहा हूँ? आप कौन सा? कोऑर्डिनेट्स का वो ले लेंगे ना, मिड पॉइंट यहाँ से बना लेंगे मैं डायग्राम पे से। वेक्टर्स लगाऊंगा, मैं भी वेक्टर्स लगाऊंगा, मैं एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं अच्छा बना रहा। ओके मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ। अच्छा ये हो गया PQR, सही है। तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर मुझे इसको पैरेललोग्राम बनाना है PQR, तो S जो होना चाहिए वो कहीं यहाँ पे आना चाहिए ना, तभी ये पैरेललोग्राम बनेगा, सही है। आई डोंट नो वेयर बट इट्स गॉट टू बी समवेयर हियर। ओके क्या मैं कह सकता हूँ कि जो QR का डिस्टेंस है, जो QR की मूवमेंट है, वही PS की भी मूवमेंट होनी चाहिए। The amount that you move from going from Q to R must be the same as the one that you go from P to S. मुझे बताओ Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 8 10 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 7 5। तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया है? एक्स एक्सिस पे -1 मूव किया है, पीछे गए हो तो P से एक पीछे जाओ, -1 से एक और पीछे जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। और क्या हुआ है? 10 से 5 तक गए हो, यू मूव फ्रॉम 10 to 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 0। So I've just shown you a different way of doing it. I'm not insisting that you do it this way. लेकिन अक्सर ये होता है कि सामने आपके डायग्राम बना हुआ होता है ना, तो कभी कभार आपको ये भी करना पड़ेगा। अभी तो डायग्राम नहीं बना तो मैंने बना के दिखा दिया आपको, सही है। अच्छा अब मुझे लग रहा है कि सिंस मुझे थोड़ी सी है ना प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता देनी चाहिए ऑफ डिफरेंट शेप्स, सो दैट वी डोंट हैव एनी ग्रे एरियाज, बिकॉज आगे जाके मैटर करेगा, सही है। ओके
अभी हम थोड़ा सा ओ लेवल्स में जा रहे हैं और बिकॉज दिस इज रेलेवेंट टू ओ लेवल्स, रेलेवेंट टू एएस एज वेल, आई एम डूइंग दिस। आप मुझे बताओ कि पहले हम डिस्कस करते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। हाउ डू यू डिफाइन अ पैरेललोग्राम? What's the defining feature? 4 vertices, opposite sides are parallel. हाँ, वो 4 vertices तो quadrilateral होता है ना, तो कोई भी हो सकता है। 2 pairs of parallel and equal sides हम कहते हैं। हाँ, 2 pairs of parallel and equal sides। और क्या? अच्छा, दानियाल मुझे एंगल के बारे में बता रहा था। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, सही है, सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट किसको कहते हैं? एडजेसेंट किसको कहते हैं बेटा? बराबर वाले एंगल को बराबर वाले को, जिसका सम 180 बनता है। सही है, राइट नेक्स्ट टू इट मिला के सम जो है वो 180 बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं वो। सही है, और मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स मीट एट मिड पॉइंट्स होता है। हाँ, सही है। व्हाट्स द एरिया? बेस इनटू हाइट होता है। ओके अच्छा, मैंने पहले पैरेललोग्राम क्यों पढ़ाया? पहले मैंने रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर क्यों नहीं पढ़ाया? बताएं, एनीवन? सर ये सब पैरेललोग्राम की टाइप्स हैं ना? एब्सोल्युटली सही है, यू आर राइट हुमायूं के, ये सारी पैरेललोग्राम की टाइप्स होती हैं। ओके, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर आर ऑल स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो मुझे बताएं कि क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम देन अ रेक्टेंगल मस्ट हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जी, सही है, लेकिन कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वो क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज? all right angles, all angles are right angles, all angles are right angles और all angles are 90 degrees में लिख रहे हैं। सही है, और सर डायगोनल्स सेम होती हैं। सेम होती है का क्या मतलब है? इक्वल होंगी। diagonals इक्वल इन का लेंथ होती वो हैं, डिस्टेंस इक्वल होता है। इक्वल इन लेंथ होती हैं, बिल्कुल सही है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। एनीथिंग एल्स? और कुछ है? नो? सही है, फिर रोम्बस पे चले जाते हैं। This is also a special type of सारी parallelogram. साइड्स इक्वल होती हैं। All properties of parallelogram पहले लिख दो। ये मैंने पैरेललोग्राम लिखा है, सही है, पैरेलल का साइन होता है फिर ग्राम लिखा हुआ है। सर सारी साइड इक्वल सारी होती हैं। साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल सारे इक्वल नहीं होते बेटा, देखो कुछ ऑब्ट्यूज हैं, कुछ एक्यूट हैं। सर दो एंगल सेम होते हैं, दो अलग होते हैं। वो तो पैरेललोग्राम से आ जाता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड आर इक्वल। और डायगोनल सेम होती हैं। नहीं होती, देखो एक ये छोटी डायगोनल है, ये बड़ी डायगोनल है। फिर और तो कुछ नहीं। एक और है, ये देखो, हम कहते हैं डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्रीज
and therefore are perpendicular, हम इसका नाम अभी रख रहे हैं, बाद में हम पढ़ेंगे इसको, perpendicular bisectors of each other. rhombus का एरिया क्या होता है? base into height. बेस इंटू हाइट हो सकता है, अगर मैं यूँ बेस दूँ और यूँ हाइट दूँ, और क्या हो सकता है? सर टू ट्राइंगल्स का एरिया। वो तो तुम ब्रेक कर रहे हो ना, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि कोई और फॉर्मूला होता है? It's diagonal 1 into diagonal 2 divided by 2. Okay, that's the formula for the area of a rhombus. Square. मुझे बताओ स्क्वायर की, पहले मैं लिख दूं all properties of parallelogram. Okay. Equal sides. All sides equal. All angles are 90 degree. All angles 90. और सर diagonals perpendicular भी होंगी और same भी होंगी. Okay, diagonals are equal and perpendicular. सही है? Therefore are perpendicular bisectors of each other. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि a square has properties of the parallelogram, it has properties of the rectangle, it has properties of the rhombus. तीनों की properties आ गई हैं इसके अंदर. अच्छा, इसका एरिया क्या होता है? सॉरी, एरिया s square. Perimeter, I'm calling it s because I've labeled the side as s. 4s. 4s. अच्छा, यहाँ पे मैं डायगोनल लिखना भूल गया. और यहाँ पे डायगोनल हो जाती है, if you simplify this, the diagonal is basically s root 2. Okay. मुझे बता, ऐसा शेप होता है जो पैरेललोग्राम नहीं होता, ट्रेपेजियम. What is the primary difference between a trapezium and a parallelogram? इसके सर सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है. There is one pair of parallel sides. One pair of parallel sides. इसमें एक एंगल जरूरी नहीं होता. सर इसको ऑल्टरनेटिव एंगल भी बनते हैं ना? एडजेसेंट एंगल बनते हैं. वो सम उनका 180 होता है. हाँ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एरिया ऑफ a trapezium क्या होता है? 1/2 into base into height into sum of parallel sides. बेस इंटू हाइट नहीं होता भाई, सिर्फ हाइट. नहीं, हाँ 1/2 into height into sum of parallel sides. नहीं, ये पैरेलल का निशान है, मैंने लिखा नहीं वर्ड. ओके. सर इसमें दो साइड सेम होती हैं, दो अलग होती हैं. दो साइड सेम दो होती हैं, पेयर बाकी ऑफ दो साइड साइड्स सेम इक्वल होती होती हैं. हाँ, 2 pairs of equal sides होती है. सही है. इसमें जो सबसे और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ना, परपेंडिकुलर होती हैं. हाँ, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं, बट द लार्जर डायगोनल, दोनों एक is a perpendicular bisector
of the smaller diagonal. और सर इसके सप्लीमेंट्री एंगल सेम होते हैं और नहीं होता इसका। सही है, ओके। इसकी जनरली ज्यादा यूज नहीं होते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाकी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते हैं ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो आइडिया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। थिंग दैट वी हैव इज gradient of a line, right? Generally हम कहते हैं कि this is gradient of a line joining 2 points. Okay, gradient का फॉर्मूला क्या होता है? gradient का फॉर्मूला होता है y2 minus y1 over x2 minus x1. Gradient is called the slope. It's represented with a small m. Okay. You get to find the gradient of the line joining this. Another line PQ has the same gradient as the line AB. Calculate the value of A. तो पहले हम gradient of AB निकाल लेते हैं। हमने कहा 11 minus 7 over 5 minus 2. That gives me 4 over 3. Okay. और फिर उसने कहा कि another line has the same gradient, तो मैंने कहा m of PQ is basically 5 minus minus 3. You have to be careful with the sign. अच्छा माइनस एक और बात है इसमें मैं बताता हूँ अभी। पहले मैंने सॉल्व कर लिया, इसकी जगह 4 over 3 आ गया, ये आ गया 8 minus 1 minus a. I cross multiply, I get 4 into minus 1 minus a equals to 8 into 3. 4 times 1, 4 times 2. So minus 1 minus a equals to 6. A equals to minus 7. सही है? तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। ओके, ये सिंपल आइडिया था, बट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू इंटरप्रेट दिस। इसका मतलब क्या होता है 4 और 3 का? कैन यू इंटरप्रेट द ग्रेडियंट फॉर मी? तो इतना इसको कहते हैं चेंज इन y और चेंज इन x. हाँ वलीद खान, यू आर राइट। अली नासिर, मैं अभी यूज नहीं कर रहा ग्रेडियंट को, दैट्स वन ऑफ द यूजेस ऑफ द ग्रेडियंट, विल टॉक अबाउट इट इन अ बिट। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। So it's called the change in y over the change in x, or it's also called rise over run. सही है? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर ये लाइन A से B तक जा रही है, तो अगर आप इस लाइन में जो है वो x को 3 यूनिट्स से चेंज करते हैं, यानी आप 3 यूनिट आगे चले जाते हैं, तो आपको लाइन पर रहने के लिए कितना ऊपर जाना पड़ेगा? y में 4 यूनिट चलना पड़ेगा, तभी आप इस लाइन के ऊपर रहेंगे। You will reach a point, another point on the line. मुझे बताएं, what if you move 6 units? तो और कितना ऊपर जाना पड़ेगा? Can someone tell me कि कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 8 यूनिट्स जाना पड़ेगा। सही है? तो ये सेम प्रोपोर्शन में आगे बढ़ता रहता है। That's the interpretation of the gradient. If you want to stay on the same line, that's how much you should change. Okay, that's how much you should change. Okay, everybody clear on this? Okay, that's the interpretation of the gradient. Again, it's also called rise over run. So ये rise है, ये run है. सही है? If you're running for running 3 units to the positive direction, you must rise 4 units to stay on the same line. इसीलिए gradient of a line joining 2 points कहलाता है। तरह लाइन जो है वो नीचे भी जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि फिर उसमें ग्रेडियंट जो होगा वो
नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं 4 तरह की लाइंस बना रहा हूँ, आप मुझे बताएं। बल्कि इनफैक्ट लेट मी ऐड अ पेज। मैंने 4 तरह की लाइंस बनाई और मैंने आपसे पूछा कि भाई बताएं किसका ग्रेडियंट क्या होता है। पहली वाली का ग्रेडियंट क्या होता है? सर पॉजिटिव होता है। Gradient is positive. Line is rising from, एक मिनट, rising from left to right. नेगेटिव होता है सर। Negative. Line is falling from left to right. इसका ग्रेडियंट क्या होता है? 0 जीरो होता है। इन्फिनिट होता है। अब इन्फिनिट होता है या जीरो होता है? अनडिफाइंड होता है सर, क्योंकि 0 से डिवाइड हो जाता है वो। ये जीरो से डिवाइड हो रहा है, उसका सिंपल सा लॉजिक क्या है? ये सोचो राइज ओवर रन, दिस लाइन इज नॉट रनिंग, okay, this line is not running, therefore the denominator is 0 and it's 0, तो undefined हो जाएगा। और इस लाइन का ग्रेडियंट फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Why? Because this line is not rising, it's just running. Okay, चलें फिर ये सेम हो गया, रिपीट। Okay, what are collinear points? सर जिन सारे पॉइंट्स का ग्रेडियंट सेम होता है। वो तो बाद में आती है बात, पहले collinear points कहते हैं किसको? Points on the same line. एक ही लाइन पे जब सारे पॉइंट्स होते हैं। हाँ सही है, same straight line. Okay, lie on the same lie on the same straight line. तो क्या होता है? Therefore gradient between any set of points is equal okay, मैंने कहा 3 points A, B and C are collinear. Find the value of x. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि m of AB should be the same as m of AC, क्योंकि A और C में unknowns नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी साइड पे AC ले लिया। ओके, तो ये हो जाएगा -9 minus 5 over x minus 0 equals to 1 minus 9 3 minus, sorry, एक मिनट, 1 minus 5 over 3 minus 0. That gives me -4 over x and 6 over 3. It's basically a relationship between the values of x and the values of y for points on that line. सही, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एक इक्वेशन अगर दूं, तो अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वापस क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। And those are basically coordinates of points that lie on this line. सही है? So the equation of a straight line is the relationship between the values of x and the values of y, and it connects the values of x and the values of y. कि आप उसमें कुछ पुट करेंगे तो रिटर्न में आपके पास एक might pass नहीं है, definitely passes out. Okay, so it's a relationship between the values of x and the values of y. Right? It can have any form. Y equals to mx plus c is just a form. We'll talk about that form in a bit. Right? हम और भी forms होती हैं, we'll talk about those also in a bit. तो मैंने आपसे कहा कि
a line with equation two y equals to 3x plus 5 passes through the point k comma minus k. Find the value of k. तो आप क्या बताएंगे मुझे कि हम क्या कर सकते हैं कि since this line passes through this point, I can insert the coordinates of this point instead of x and y. तो मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं y की जगह लिख सकता हूँ माइनस k और x की जगह क्या लिख सकता हूँ? k. I can insert the point into an equation if that point lies on the graph of that equation basically. सही है? तो ये बन जाएगा minus 5k equals to 5, k is therefore equals to minus 1. सही है? So the equation of a line primarily helps you find coordinates of points that lie on that line. सही है? उसकी forms जरूर होती हैं and we'll talk about the forms in a bit. Okay. Forms of the equation of a straight line. The first form is what? जो आप बहुत commonly पढ़ते हैं y equals to mx plus c. सही है? अगर आप जो है वो y को आइसोलेट कर देंगे और x के साथ आपको एक कोफिशिएंट नजर आ रहा है और एक कांस्टेंट अलग से नजर आ रहा है, तो अगर इस फॉर्म में आप ले आए तो ये आपके पास m जो होगा वो स्लोप हो जाएगा और c जो हो जाएगा वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा. y इंटरसेप्ट क्या चीज होती है? Where the line cuts the y axis. यहाँ पे एक और बात आपको क्या पता है? x is equals to 0. सही है? पहले हम थोड़ी सी x और y इंटरसेप्ट के बारे में पीछे जाके बात करते हैं. अगर मैं आपसे कहता कि आप मुझे ये लाइन जो है वो स्केच करके दिखाएं. Sketch the line 2y equals to 3x plus 5. What would you have done? सही है? स्केच करने के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती, 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. वैसे तो टेक्निकली आप कोई भी पॉइंट्स निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो ज्वाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा. और जहाँ स्केच बना रहे होते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि भाई वो एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है. तो आप सिर्फ 2 तरह के पॉइंट्स निकालें. आप एक एक्स इंटरसेप्ट निकालें. एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? y को 0 रख के. और आप एक y इंटरसेप्ट निकालें. वो कैसे निकलता है? x को 0 रख के. सही है? आप ये 2 काम कर लें तो आपके पास जो होगा वो मसला हल हो जाएगा. -5/3. सही है? 1.66 आ रहा है माइनस. और y इंटरसेप्ट निकालें. तो मैंने कहा कि एक छोटा सा स्केच मुझे बनाना है. तो बड़े बना लेते हैं. ये -1 -2 और ये 1 2 3. सही. एक ये पॉइंट आ गया है सॉर्ट ऑफ, और एक ये पॉइंट आ गया सेंटर में. तो आप क्या करेंगे? आप जो है वो यूं करके एक लाइन बना देंगे. सर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा. नजर नहीं आ रहा. ओह सॉरी. ओके फाइन. सही. दैट्स व्हाट आई हैव डन. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई हैव डन. कि मैंने जो है वो 2 पॉइंट्स पे रैंडम पॉइंट्स नहीं निकाले, मैंने सिर्फ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिया. सही. और मैंने ये लाइन आपको स्केच करके बता दी. उसका मकसद क्या है कि x और y इंटरसेप्ट हम जनरली क्यों निकालते हैं? क्योंकि कभी कभार जो है वो क्वेश्चन आपसे फॉलो अप क्वेश्चन कहेगा कि भाई इसका एरिया निकाल के बताओ. तो आपको नजर आ रहा है कि भाई अगर एरिया निकालना ही है मैंने, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भाई मैं जो है वो मुझे पता हो कि x को कहाँ कट कर रहा है और y को कहाँ कट कर रहा है.
सही है? Does that make sense? कि whenever I ask you to sketch a line, I would want you to use the x and y intercepts rather than using other coordinates. Sorry, वो screen hang हो गई थी. I hope everybody understands this. This form again. इस form का एक नाम भी होता है. किसी को पता है क्या नाम होता है? हम अपने O levels A levels में नहीं यूज करते. अमेरिकन इसको कहते हैं क्या? सॉरी, लीनियर इक्वेशन। वो तो कोई भी इक्वेशन हो, स्ट्रेट लाइन उसको कहते हैं ना. इसका नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. Why? Because it shows you the slope and it shows you the intercept. कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट शो करते हैं. तो अभी क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि राइट डाउन द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन. तो मेरे पास पहला है y इक्वल्स टू 2x प्लस 7. तो मैं कहूँगा कि इसमें ग्रेडियंट कितना है? 2 और y इंटरसेप्ट क्या है? 7. y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स पूछो तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,7. ये सबको समझ आते हैं ना? But to 4 minus 3x. अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप पहले -3x प्लस 4 लिख लें. ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? -3 और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 4. कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूँ 0,4. अभी तीसरी वाली है. इसमें y जो है वो आइसोलेट नहीं हुआ. तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ से 2 को हटाऊंगा. जब 2 हटेगा तो बेसिकली आप इसमें ये करें कि आप दोनों से अलग अलग जाके डिवाइड कर दें. आपको पता है सबसे डिवाइड करना है, आपने दोनों से अलग अलग जाके डिवाइड कर दिया. तो आपके पास ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? 5/2. और आपके पास c कितना आ जाएगा? हाफ पार्ट 4. अब यहाँ पे क्या है कि सब एक साथ लिखा हुआ है. हमें पता है कि हमें क्या चाहिए? y एक साइड पे चाहिए और बाकी सब दूसरी साइड पे चाहिए. तो व्हाट आई वांट टू शो यू इन दिस क्वेश्चन इज कि भाई जरूरी नहीं होता कि आप जो है वो y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, आप y को राइट हैंड साइड पे भी रख सकते हैं. आपने तो y को आइसोलेट करना है. तो y ये 3 आके डिवाइड हो गया. तो m हो गया 4/3 और c हो गया 2/3. अभी तक मैंने आपको इक्वेशन सारी दी हुई थी. पहली एग्जांपल में भी दूसरी एग्जांपल में भी मैंने जो है वो आपको इक्वेशंस प्रोवाइड की हुई थी. अब आई एम टॉकिंग अबाउट constructing the equation of a straight line. Constructing. अच्छा, मैं एक और फॉर्म बताना भूल गया ना. सेकंड फॉर्म क्या होती है? एक और फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1. सही है? इस फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं ये आपको पता होना जरूरी नहीं है. बस आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई इस फॉर्म का मतलब क्या होता है. एक कोऑर्डिनेट डाल देंगे. नहीं, वैसे फॉर्म को इंटरप्रेट कैसे करोगे? इक्वेशन आ जाएगी ना. वो तो इक्वेशन तो बनी हुई होगी. लेट्स से मैंने तुम्हें ये बता दिया. तो ये 3 और 4 का मतलब क्या है? सही, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो हम कहेंगे कि a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट. अगर इस फॉर्म में होगी तो फिर आगे तुम्हें जो भी ऑपरेशन करने हो तुम कर सकते हो कि भाई तुमने ग्रेडियंट निकालना है, कोई पॉइंट निकालना है, सो ऑन. ओके, ये कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में दी हुई है. फॉर्म कैसे आती है यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. आप इस फॉर्म को क्रिएट करने जाएंगे तो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है. कभी कभार इसमें फ्रैक्शंस में चले जाते हैं तो वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. इट्स बेस्ट नॉट टू गो डाउन दैट रोड. आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्म नजर आ जाए तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है. सही है? दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि सिर्फ इंटरसेप्ट सिखाती है. सही है? ये आपने हो सकता है कुछ लोगों ने सिलेबस डी के अंदर देखी हो. इन एनी केस, कंस्ट्रक्टिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. क्या दो चीजें चाहिए होती हैं? यू नीड 2 थिंग्स. What are the 2 things that you need? Gradient of points, sir. किसी है
You एक need पॉइंट gradient of the line and coordinates of any point on the line. सही है? Once you have these two things, आप कौन सा formula use करेंगे? Now those of you who have not done add math, please try to do this formula. ये आप करेंगे तो questions आसान लगेंगे. मुझे पता है आप लोगों की आदत होती है y equals to mx plus c से करने की, but that's an old idea. आप direct solve करेंगे, आप कहेंगे कि y minus y1 equals to mx minus x1. अगर इसमें gradient और point fill किया जाए, सही है, ग्रेडियंट और पॉइंट फिल किया जाए तो ये ऑटोमेटिकली इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बन जाती है. सही है. इस पार्ट ए को हम देखते हैं. पार्ट ए में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू 3 7 एंड हैज ग्रेडियंट 4/5. तो मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट भी अवेलेबल है और मेरे पास जो है वो ग्रेडियंट भी अवेलेबल है. तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. मैं लिखूंगा y minus y1 equals to m times x minus x1. m की जगह मैं लिखूंगा 4/5 और x1 की जगह मैं लिख दूंगा 3. की जगह y1 की जगह 7 लिख दिया, x1 की जगह 3 लिख दिया. अब मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि जब भी आपके पास ये फॉर्म आ जाए आप प्लीज फ्रैक्शंस के अंदर प्ले ना करें. आप सिंपल सा एक काम करें, आप इसको उठाएं 5 को यहाँ से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका जो इक्वेशन हो जाएगी 5y minus 35 equals to 4x minus 12. अब आप इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ दें तो भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए एग्जामिनर को, और अगर आप ये करके कर देते तो भी एग्जामिनर को कोई एतराज नहीं होगा. y equals to mx plus c जो है वो फॉर्म जरूरी नहीं होती. आपने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनानी है, वो आप किसी भी फॉर्म में मुझे बना के दे सकते हैं. आप यहाँ तक भी काम करेंगे तो भी दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. मैं जनरली यहाँ तक सिंप्लीफाई करके छोड़ता हूँ क्योंकि अक्सर आगे यूज करनी होती है. पार्ट बी says find the equation of a line passing through the points A and B. अब पार्ट बी में क्या चीज है? मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. मुझे क्या जरूरत होती है? मुझे तो एक पॉइंट चाहिए होता है और एक ग्रेडियंट चाहिए होता है. मुझे 2 पॉइंट्स तो नहीं चाहिए होते. अब 2 पॉइंट्स हैं तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ. मैं कहा चलो एक पॉइंट भी अवेलेबल हो गया, -4 7 ये पॉइंट हो गया. ग्रेडियंट जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा. मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेता हूँ. 7 मुझे पता है फॉर्मूला होता है y2 minus y1 over x2 minus x1. बन गया 12 over -7. सही है. मैंने फिर से क्या फॉर्मूला लगाया? y minus y1 equals to m times x minus x1. y minus कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये वाला लिया है ना 7. 12 over -7. आप पॉइंट दूसरा भी यूज कर लें, सेम आंसर आना चाहिए आपका. हो सकता है थोड़े से नंबर्स मल्टीपल्स आए लेकिन आंसर सेम आना चाहिए. फिर मैंने आपसे कहा कि भाई आप ज्यादा इसको फ्रैक्शन में प्ले ना करें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -7y plus 49 equals to 12x plus 48. ओके. आप चाहें तो सब एक साइड पे लेकर आ सकते हैं. आपने कहा कि हमें माइनस की साइन अच्छी नहीं लगती तो हम जो है वो उसको इधर ले आते हैं. आप इस फॉर्म में छोड़ दें. It doesn't matter what the form is as long as the equation is correct. Some of you might sometimes get different forms. कभी कभार क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि आप जो है वो ये वाली फॉर्म बना के दें, फिर आपने उसकी डिजायर्ड फॉर्म बना के देनी होती है उसको. सही है. एंड वी लुक एट क्वेश्चंस लेटर ऑन. पास पेपर्स की जरूरत है. Equations of special lines. सही है. पहली वाली है हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर मैं ये एक लाइन बनाऊं, इट्स हॉरिजॉन्टल लाइन एट 3, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी?
y इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, जो भी y इंटरसेप्ट होता है उस पर इक्वेशन बन जाती है। ये मैंने बनाई -2 पे, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू -2। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन, इसमें mx प्लस c नहीं आएगा। ओके, यू गॉट टू रिमेम्बर दैट कि y इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में होती है। What is that something? That something is generally the y-intercept. Vertical lines. इसकी इक्वेशन क्या होगी, x equals to 1. This is the equation. X equals to -5. So vertical lines have the equation in the form x equals to something. Out. सही है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, मुझे बताएं पहले पैरेलल लाइंस के बारे में। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, the gradients are same. ग्रेडियंट सही है, पैरेलल लाइंस आर द सेम, ग्रेडियंट सेम होता है। आर द सेम ग्रेडियंट। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये m1 है और ये m2 है, तो m1 must equal m2, gradient of the first line must equal the gradient of the second line. अब उसने कहा कि find the equation of the line that passes through 3, -2। तब मुझे इक्वेशन बनाने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए होता है, सही है, मुझे अगर इक्वेशन बनानी है तो एक पॉइंट चाहिए होगा। उसने कहा 3, -2 एंड पैरेलल टू द लाइन। मुझे पता है मुझे ग्रेडियंट भी चाहिए होता है, तो मैं ग्रेडियंट क्या करूंगा, मैं पैरेलल लाइन से बोरो कर लूंगा। ये दो लाइंस हैं, एक 3, -2 से गुजरती है, इसकी इक्वेशन मुझे नहीं पता और इसकी इक्वेशन मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसका ग्रेडियंट निकाल के यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ग्रेडियंट। ओके, मैं इसका ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा, अभी मैंने सीखा था कि जब इक्वेशन होती है तो उसको यूज कैसे करते हैं हम, जो है वो उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c में ले आते हैं। ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, -3/2। तो अब क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, मैं एक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, y माइनस -2 -3/2 x minus 3. Again, I'm going to cross multiply 2y plus 4 minus 3x plus 9. 2y equals to minus 3x plus 5. Right? Any questions? I am borrowing the gradient from the other parallel line and using it in the line that is in the question. Okay. What are perpendicular lines? Perpendicular lines के Product of the gradient -1 के is 1. अभी क्या बोल रहे हो? पहले मुझे बताओ होती क्या है, ग्रेडियंट के बारे में बाद में बात करेंगे, होती क्या है? सर 90 डिग्री बनता है इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल में नहीं, किसी भी पे बन सकता है। हाँ They किसी meet भी at लाइन पर they meet at 90 degrees. सही है, they meet at 90 degrees. तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। सही है, अब उनके ग्रेडियंट के बारे में दो चीजें होती हैं, हम कहते हैं कि ग्रेडियंट और नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सही है, उसको लिखते कैसे, उसको इस तरह लिखते हैं, m1 is equals to -1/m2।
इसका मतलब क्या है कि अगर एक का ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल -3/2 आता है तो दूसरी का कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा. If m1 is -3/2 then m2 is 2/3. If m1 is for example 5 तो m2 कितना हो जाएगा -1/5. इसको लिखने का एक और तरीका होता है, हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स इज -1 के m1 और m2 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है -1 आता है. ये कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज होगा इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं हम. वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 4 4 and perpendicular to the line 4x plus 5y equals to 11. तो मैंने कहा कि 4x plus 5y equals to 11 एक परपेंडिकुलर लाइन है इस तरह की और मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 4 4 से पास हो रही है. तो मैंने कहा कि जो 4 4 से पास हो रही है इसका ग्रेडियंट चाहिए होगा. इसका ग्रेडियंट मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूँगा कि इसको जो है वो हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं. ओके तो इसका ग्रेडियंट आ गया -4/5. m1 अगर -4/5 आया है तो m2 क्या हो जाएगा नेगेटिव 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 मिला के पॉजिटिव और 5/4. It's the negative reciprocal of the other gradient. Then I go to y minus y1 mx minus x1 और मैं कहूँगा कि y minus 4 5/4 x minus 4 4y minus 16 5x minus 20.